Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval, Standard 8, Subject Science, Chapter number 13, Sound. Okay, exercise. Choose the correct answer. Sound can travel through gases only, solid only, liquids only, या D, solid, liquid and gases. Okay, so answer is sound can travel through solids, liquid and gases. Sound requires a medium to travel through solid, liquid and gas provide the medium for sound. Hence, sound can travel through solids, liquid and gas. Question number 2. Which of the following voices is likely to have minimum frequency? कौन से वॉइस की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है? सो बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन या अ वुमेन? सो आंसर होगा अ मैन. मिनिमम फ्रीक्वेंसी अ मैन के वॉइस की होती है. द वॉइस ऑफ एन एडल्ट मैन इज ऑफ लोअर पिच in comparison to the voices of a baby boy, a baby girl and a woman, since frequency of a sound is directly proportional to its pitch. Man's voice is of minimum frequency in comparison to a boy, a girl और अ वुमन वॉइस. तो मैन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लोअर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है उनकी जो आवाज़ है वो आपको कैसी लगेगी, एकदम जो है वो भारी लगेगी. ठीक है. देन ट्रू और फॉल्स. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स. सो फर्स्ट है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है. तो आंसर क्या होगा? ट्रू. बिकॉज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू सिंस वैक्यूम इज डिवॉइड ऑफ एनी मीडियम. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट. साउंड जो है वो वहाँ पे ट्रैवल नहीं करता है. ओके. बी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड of a vibrating object is called its time period. Okay, तो आंसर आएगा false. The number of oscillations per second of vibrating object is known as its frequency. Time period is the time required to complete one oscillation. जो one oscillation जो है वो complete करता है. If the amplitude of vibration is large, sound is feeble. Sound जो है वो हमें सुनाई देता है. तो क्या आंसर आएगा उसका? false. Because loudness of a sound is proportional to the square of the amplitude of its vibration. When the amplitude of vibration of a sound is large, the sound is very loud. The sound is feeble for small amplitude. Okay, छोटे amplitude के लिए वो feeble है. Then D, for human ears, the audible ranges is 20 Hz to 20,000 Hz. So answer होगा true. Because humans cannot hear sound of all frequencies. Humans can hear a sound whose frequency fall in the ranges of 20 Hz to 20,000 Hz. The sound having frequency out of this range is inaudible to humans. Human के लिए कैसी है वो? Inaudible है. Then E, the lower the frequency of vibration, the higher is the pitch. तो क्या आंसर होगा उसका? false. Because the pitch of sound, जो साउंड की पिच है उसकी बात की है, the pitch of sound is proportional to its frequency.
As the frequency of vibration increases, the pitch of the sound also increases, and vice versa. A sound is said to be high pitched if its frequency of vibration is high and is low pitched for a small frequency of vibration. लोअर जो पिच है वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए है, ठीक है. देन एफ, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूज़िक. उससे जो है वो म्यूज़िक बजता है. तो आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज अनवांटेड और unpleasant sounds are known as noise. Sounds that are melodious and pleasing to ear are known as music. उससे हमें क्या होता है, म्यूज़िक सुनाई देता है क्योंकि वो अनवांटेड साउंड है. देन जी जो है वो, नॉइज पॉल्यूशन में कोज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. ट्रू या फॉल्स? सो आंसर होगा ट्रू. अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड्स आर known as noise. If one is subjected to loud unpleasant sound continuously for a long time, then it may cause temporary hearing impairment. मीन्स के टेम्पररी हम सुन नहीं सकते. ज़्यादा साउंड होता है, जो साउंड अनप्लेजेंट होता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए. वन इज सब्जेक्टेड टू लाउड अनप्लेजमेंट साउंड continuously for a long time, then it may cause temporary hearing impairment. Then question number 4. ये जो है उससे पहले ये जो है ना आप लिख लीजिए ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न. ठीक है, हो गया. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. ए, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड ब्लैंक. तो क्या आंसर होगा उसका? टाइम पीरियड. टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. बी, लाउडनेस इज डिटरमिन बाय द ब्लैंक ऑफ वाइब्रेशंस. जो लाउडनेस है वो उसकी एम्पलीट्यूड से डिटरमिन होती है. ओके. लाउडनेस इज डिटरमिनेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस. सी, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ब्लैंक. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्स. HERTZ, हर्ट्स, जिसको हम सिम्बॉलिकली H और Z ऐसे लिख सकते हैं हर्ट्स को. चैप्टर में आया है. हर्ट्स नाम का एक साइंटिस्ट है. ओके. उसके जो नाम पे से ही हमें उसका यूनिट मिल गया है, हर्ट्स. देन अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड ब्लैंक. अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइस. देन ई जो है वो है, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन बाय द blank of vibrations. तो shrillness of sound is determined by the frequency of vibration. वो जो है वो frequency से determine होता है. Shrillness is also called pitch of the sound. Pitch is directly proportional to the frequency of vibrations. Hence, shrillness is determined by the frequency of vibration.
स्टिलनेस जो है वो फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन होती है। ओके, स्टिलनेस इज ऑल्सो कॉल्ड पिच ऑफ द साउंड। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हैंस स्टिलनेस इज डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओके, ये फिलर्स पहले लिख लीजिए आप। आई गिव सम टाइम फॉर यू। Question number 5. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. हमें उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। पेंडुलम का यहाँ पे हमें दिया है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी पर सेकेंड। तो इट इज़ गिवन बाय फ्रीक्वेंसी का क्या होगा इक्वेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 40 है और टोटल टाइम दिया है 4 सेकेंड। सो 4 10s are 40। तो हमें आंसर मिला 10 हर्ट्ज। हम ऐसे कर सकते हैं ना, 4 10s are 40, तो 10 हर्ट्ज मिला। Then time period is equal to 1 upon frequency of oscillation. So 1 upon 10 to 0.1 second. Question number 6. The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो इक्वेशन है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड क्या होगा 1 अपॉन 500। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 500। तो आपको करना है तो आप कैसे करोगे, 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 500। ओके, तो सबसे पहले तो 500 से होगा ही नहीं, तो कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 और ये 100,000। ओके, हम ऐसे कर सकते हैं। तो 0.002 सेकेंड हमें आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट है ढोलक, बी सितार और सी फ्लूट। तो ढोलक में कैसे होगा, तो ढोलक इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड इट्स हेड। व्हेन द हेड इज बीटन जेंटली द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन सेट्स इनटू वाइब्रेशन। सिंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द ढोलक प्रोड्यूसेस अ साउंड। तो ऐसे ढोलक की है जो वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। बी है सितार। तो सितार अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लक्ड इट सेट्स इनटू वाइब्रेशंस। सिंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द सितार प्रोड्यूसेस अ साउंड। सी जो है फ्लूट। फ्लूट इज अ होलो पाइप। When air is blown over its mouth, the air inside the pipe is set into vibration. As a result, a pleasant sound is produced. तो उस ऐसे हमें अच्छी आवाज़ सुनाई देती है फ्लूट से। हमें क्या करना है, when air is blown over its mouth, हमें एयर है वो अपने माउथ से उसमें ब्लो करनी है, तो अंदर वाइब्रेशन होगा और हमें म्यूज़िक जो है वो सुनाई देगा।
Question number 8. What is the difference between noise and music? नॉइज़ और म्यूज़िक के बीच का डिफरेंस क्या है? कैन म्यूज़िक बिकम नॉइज़ समटाइम्स? क्या ऐसा होता है कि जो नॉइज़ है म्यूज़िक जो है वो नॉइज़ बन जाता है कभी कभी? तो उसका आंसर है द साउंड दैट इज़ प्लेजिंग टू द ईयर इज़ कॉल्ड म्यूज़िक. फॉर एग्जाम्पल, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वायोलिन्स, pianos, flutes, gongs, etc. The sound that is unpleasing to the ear is called noise. Some example of noise are as follows. First has sound produced by horns of buses and trucks. Second, sound of electrical generators. थर्ड जो है वो है साउंड ऑफ अ गन शॉट. फोर्थ जो है वो है साउंड प्रोड्यूस बाय जखमैट्स. यस, म्यूज़िक कैन बिकम नॉइज व्हेन प्लेड एट हाई वॉल्यूम. हाई वॉल्यूम से म्यूज़िक पढ़ता है तो हमें ऐसी आवाज़ आती है. क्वेश्चन नंबर 9. लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स. आपके आसपास ऐसे म्यूज़िक हमें सुनाई दे कि जिसमें नॉइज़ प्रोड्यूस होता है. List sources of noise pollution in your surrounding. Some sources of noise pollution are as follows. First है television and transistors running at high volumes. वो ज़्यादा बड़ी आवाज़ से बजते हैं. Then loudspeakers and crackers. थर्ड जो है वो horns of buses, cars and trucks. और फोर्थ है some applications such as mixer, डेजर्ट, कूलर एक्सेट्रा. ये सब की आवाज़ ज़्यादा होती है. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस. कैसे जो है वो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो हार्मफुल हो सकता है. सो आंसर, नॉइज़ पॉल्यूशन कैन लीड टू अ नंबर ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. फर्स्ट है हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता कम हो जाती है. सेकंड है इंसोमिनिया, मीन्स के इनएबिलिटी टू स्लीप, हम सो नहीं पाते हैं. थर्ड जो है वो हाइपर टेंशन हो जाता है. फोर्थ है सीवियर हेडेक होता है ज़्यादा. और फिफ्थ है स्ट्रेस. क्वेश्चन नंबर 11. योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस. दे हैव बीन ऑफर्ड one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. हमें हमारा आंसर को एक्सप्लेन करना है. तो there will be a more noise in the house which is along the roadside. This is because noise produced by transportations vehicles may cause trouble to the residents. The intensity of noise decreases with the distance between the source and the listener. Hence, it is better to take the house that is 3 lanes away from the roadside. 3 lanes जो है वो रोड साइड पे हम कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. स्केच लैरेंक्स. ये लैरेंक्स का स्केच है, कोई फ्लावर नहीं है. Sketch larynx and explain its functions in your own words. So answer, larynx is a part of the throat. It is responsible for production of sound. A sketch, a human larynx is shown in the following figure. यहाँ पे human larynx का डायग्राम है. साइड व्यू ऑफ larynx है और टॉप व्यू ऑफ larynx है. Larynx moves when we swallow something. हम कोई चीज़ को अंदर निगलते हैं तो हमें लैरिंक्स जो है वो मूव्स करता है. इनसाइड द लैरिंक्स देयर आर 2 वोकल कॉर्ड्स. देयर इज़ अ स्मॉल गैप बिटवीन देम. दिस स्मॉल गैप अलाउज एयर टू पास थ्रू. व्हेन वी स्पीक, एयर इज फोर्स्ड इनटू दिस स्मॉल गैप बाय द लंग्स. दिस promotes vocal cords to vibrate. Since vibrating object produce sound, sound is produced due to the vibration of vocal cords. Question number 13. Lightning and thunder take place
in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is seen later. Can you explain? So, yes, the speed of sound is less than the speed of light. Hence, light reaches us before the sound during the lightning, which is accompanied by thundering. Okay, light की जो frequency है वो ज़्यादा है compared to speed of sound. Okay, student. So write in your CW. Thank you.